आप कुछ बोलिए। Rishikant Sharma ji, you speak something so we can we'll find you. Where are you? ऋषिकांत शर्मा जी, आप माइक को अनम्यूट कीजिए, उनका माइक अनम्यूट कीजिए, देखिए कौन सा है। Okay, Sir, then audible? okay. Welcome you. So we Yeah, sir. welcome. Good evening, all of you. Wait, Rishi. We'll introduce yourself. So we welcome our resource person Rishikant Sharma ji. Currently, he is the chairperson of IBSA, Goalball Subcommittee India, head coach of Goalball, visually impaired, sports director, Equal Opportunity Cell, University of Delhi, and he also have the lots of achievements. He is the para athlete, javelin thrower, actively participate, and we go first time he went in 2010. I was the coach of all the blind Indian blind team. So he will telling about himself. So we welcome you, Rishikant Sharma ji. We welcome today. The topic is the blind sports, and we have to explain Rishikant Sharma ji because we are doing community coaches training program for 1 month. It has started begin on the 15th of the July and it will continue till 15th of August. So there are 100 and now today it's 37 and the coaches from around the 23 states, they are participating on the Zoom online mode. So we welcome you, Rishi. Welcome you. And a slideshow has been given to our moderator, Rahul ji. Did you get the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So please begin with slide, then Rishikant Sharma ji will speak. Yes, Rishikant ji. Yeah, welcome you. Sir, so good evening, sir. Yes. Good evening. Good evening, all of you. Yeah. Respected our former commissioner, Bihar states, Shivaji sir, and all my dear friends. I think everybody can understand English or Hindi also. English. Speak in English. Okay, fine. So everything to brief my achievement, Shivaji sir. I was in 2002. I was studying in National Institute for the Visually Handicapped in Dehradun. That time I was started, blind national athletic championships in Delhi, IPSA. That time I was won gold medals. That my started I was career my in sports. So that time I was selected in Canada 2003. So in 2003 I never stopped in sports. I have participated 4 time Asian Games till 2023, right? And 3 times IBSA World Games. I achieved silver medal in World Championships and Games IPSA. And 2006 FASPIC Games I was won a bronze medal in javelin throw. So and so many Grand Prix, German Grand Prix, China Grand Prix, and Dubai Grand Prix. I won a gold medal. Now I am currently my achievement in sports career as well as I am a IPSA executive member as and also chairperson of the goal ball. Goal ball is a new India. India is working in goal ball in 2023. Now so our big achievement in goal ball also in pan India last time we organized in youth national in Gwalior CDS. There is participated 18 teams. Now this is the second youth championships in Nadiad, Gujarat we are hosting. So last time we are also organized fifth senior goalball championship in Patna under the supervision of Shivaji sir. So thanks to Shivaji sir, there is very good atmosphere and good grounds really. So this is our in goalball achievement, and now we are going to youth world championship Astana, Kazakhstan in month of November.
So we are aggressively we are doing the work in the goal ball, because goal ball, since goal ball is started in 1946, after Second World War. So German people, Australian people who working in war, in injury, in visually impaired, now that time creation of the like engage में ब्लाइंड को इंगेज करने के लिए गोल बॉल को स्टार्ट किया गया था. After that, in 1976, Toronto Paralympic Games introduced International Paralympic Committee and IBSA, International Blind Sport Federation, introduced a goal ball in Paralympic Games. So in 1976, but never India participated in goal ball. Now it's a very craze in India. Now in Patna is 28 teams participate there. And now in youth national also around 25 states entries. So we are doing very fast. And also Sports Authority of India, Paralympic Committee of India, everybody is supporting these games because this is the Paralympic Games. So that is the situations. And also a good in also that topic is visually impaired, no, right? So visually impaired, I already brief in videos B1, B2, B3, everything in classification in the athletics, IPSA, B1, B2, B3 introduced in Paralympic Games 11, 12, 13, swimming S9, S10, 11, like that. So, but bilateral in IPSA games like football, blind judo, and goal ball. This is the Paralympic Games. Bilateral in IPC, Paralympic Games, blind football, goal ball, and judo. These are the IPSA games, but introduced in IPC also. And athletics and swimming and tandem cycling in also Paralympic Games as in IPSA, IPC and PCI also. I am right, Shivaji sir? So slide show दिखाएं हम ऋषिकांत जी. We'll start. Yes, sir. Okay, next. Yeah, start already by seeing the slide show. Please explain. Yes. Are you able to see the slides? Yes, I can see little bit. Yeah, this is my name. I'm a chairperson like that, no? Yes. First, this is the so I will Blind yeah. sports, yeah. Yeah. So blind sports. Introduced to blind sports, goal ball, blind. Yeah, and Cricket blind and cricket, athletics. Yeah. athletics. मैं So एक मिनट ऋषि, मैं बता दूं कि ये हमारे ऋषिकांत जी B2 कैटेगरी के हमारे पर्सन विथ ब्लाइंड हैं, तो इनको दिखने में दिक्कत होती है. सो आई विल हेल्प हिम टू रीड आउट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस. सो ऑलरेडी ऋषिकांत जी के बारे में बात हो गया. आगे आगे बढ़ जाइए. वो भी बढ़ जाइए, ये भी बता दिए हैं. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, ये भी बता दिए हैं अपने बारे में. ठीक है. यस, लर्निंग आउटकम. ऋषिकांत जी विल जस्ट एक्सप्लेन. आप बताइएगा. By end of the today session, the participants will understand the concept of blind sports. Second is learn adapted sports techniques. Next है understand goal ball and blind cricket. Next है learn athletics for visually impaired athletes, and then understand safety and communication techniques. And next है develop confidence to organize inclusive sports activity in community level. So ये हमारा outcome है. So we'll start next slide. Yeah. So what is the blind sports? आप explain कीजिए. मैं heading बताऊंगा, आप बता देना. Yes. the sports use modified rules, What are audible the- equipment, orientation and techniques. Yes. Yeah. So I know आपको बता देता हूँ थोड़ा सा. I am explaining about the goal ball, ना शिवाजी सर? Only. Yeah, each नहीं, every चीज जो स्लाइड्स में बता देते तो अच्छा रहेगा. slides. मैं पढ़ देता हूँ, आप बता देना. ठीक है. Yes, So sir. blind sports are the separately adapted sports designed for the athletes with the visually impaired. These words are modified rules, audible equipments, orientation techniques, guided assistance, team communication, safe playing environment. So blind sports ensure equal participation, independence and fair competition. इसके बारे में बता दीजिए.
See, so मैं आपको we are explaining like visually impaired. So B1, B2, B3 in goal ball B1, B2, B3 can play. Okay, but every blind can apply goal fix like blindfold. Equal, मतलब anybody can't see in the goal ball area. So three players can participate in the once time, and three is a substitute in goal ball. Or there is a tactile, the path of the tactile, like inside the rope. Blind can see, touch, and feel where he is sitting. And ऋषिकांत जी हम गोल बॉल के बारे में आएंगे। अभी हम ब्लाइंड स्पोर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर आपको थोड़ा सा हम मदद कर देते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम गोल बॉल में आएंगे, गोल बॉल नेक्स्ट है। सो अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ब्लाइंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं अच्छा, मैं बताता बता देता हूँ। यस यस। हूँ। Blind sports, blind sports, सर मैं हिंदी में बोलूँ तो ज्यादा बेटर हाँ रहेगा। हाँ, हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोलिए। जैसा कि ब्लाइंड्स का जो स्पोर्ट्स है, एक बौद्धिक विकास, एक शारीरिक विकास, एक दोनों का सम्मिलन है। हम जब स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हम अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगाते हैं, हम अपने पूरे दिमाग को भी यूज करते हैं। एक शरीर का यूज करने के साथ साथ हमारा अपने बुद्धि का भी मतलब अपने माइंड को भी यूज करते हैं। तभी हम कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेंथ नजर आता है उन प्ले टीम्स का। सो अभी तो जो यही डेफिनेशन है ब्लाइंड्स का स्पोर्ट्स के बारे में। मैं हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लाइंड स्पोर्ट्स कुछ बता दे। जैसे में गोल बॉल है, हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट है, ब्लाइंड एथलेटिक। स्पोर्ट्स में गोल बॉल, ब्लाइंड क्रिकेट, एथलेटिक्स, ब्लाइंड फुटबॉल, फाइव ए साइड, जूडो, चेस, पावर लिफ्टिंग, तैराकी, टेंडम साइकिलिंग, रोइंग, and another non-Paralympic event like now introducing archery and shooting also. So ये सभी गेम जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड बहुत इजीली खेल रहे हैं। वो पैन वर्ल्ड, पूरे विश्व में खेला जा रहा है सारे गेम्स को। सो एक बड़ा, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, सी द ब्लाइंड्स आर आल्सो एबल टू पार्टिसिपेट इन द शूटिंग आल्सो। एम आई राइट Yes, श्रीकांत जी? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। In last year hosted in archery in Delhi. So many यस। blinds participated there, sir. Or now tandem, triathlon also, sir, in Pune hosting athletic 10 triathlon, swimming and cycling and running. These are the three combination, and who is coming the first or second like that. This is also Paralympic games of triathlon. Shivaji, sir. Yes, yes, yes. So we So understood all these types of. Next slide, please. The classification of athletes B1, B2, B3 इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर B1 जो होते हैं पूर्ण रूप से दृष्टिहीन होते हैं। B1 ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड, ही कांट सी एनीथिंग एंड परसेप्शन ऑफ लाइट्स, लाइट्स आल्सो। नो, B2 कैन सी 5 meters and B3 can 10 meters, can easily can see can he or she can 10 meters can see proper. B1 can take always guide, B2 also can take guide, but B3 can't take guide. थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये गाइड रनर होते हैं जो दृष्टिबाधित के साथ दौड़ते हैं, तो B3 वाले गाइड रनर नहीं ले सकते हैं, और B1, B2 ले सकते हैं। एम आई राइट? यस सर, किसी भी गेम में B1 B2 ले सकते हैं सर। हाँ, तो राइट उसके साथ रहते हैं। मान लीजिए रनिंग है तो उसको सपोर्ट करना है, ना कि उसे उसके अगर आगे नहीं बढ़ना। एक लेफ्ट भी आगे हो गया तो वो जो है फाउल होगा। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। बी नेक्स्ट टू को स्लाइड। सिर्फ B2 को सिर्फ गाइड जो होता है सिर्फ दिशा दिखाने के लिए होता है, वो कंपटीशन का एक। हाँ हाँ, कभी से जैसे शॉर्ट पुट करना है या बाकी करना है तो वो खाली वहां पर सामने रहेगा। और ये सामने सम साउंड लाइक हाँ क्लैप और सामने, लॉन्ग हाँ जंप। हाँ, कि भाई फेंको, थ्रो करो, सामने देखो। ठीक है, ये सब। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अभी थोड़ा सा बताएंगे एडेप्टेड इक्विपमेंट्स यूज इन द ब्लाइंड स्पोर्ट्स। सो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, फिर आप एक्सप्लेन कीजिएगा। स्पेशल इक्विपमेंट्स मेक्स स्पोर्ट्स सेफ एंड एक्सेसिबल। कॉमन इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड ऑडिएबल बॉल, इसके बाद आई सेट्स, गाइड रोप, थेथर, देन द टेक्टाइल कोट मार्किंग, देन protective pads, helmets where required, safety mats, whistle and voice commands. These adaptation enable visually impaired athlete to compete independently and safely. Yes, Rishikant ji. हाँ सर, सर इज ऑलरेडी एक्सप्लेन ना। दीज आर द इक्विपमेंट जो ब्लाइंड यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में। जैसे ब्लाइंड्स के लिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल में भी लमसम साउंड्स, गोल बॉल में भी कुछ ना कुछ बेल्स है, साउंड्स है ना। उसी प्रकार गोल बॉल में डिजाइन टेक्टाइल की डिजाइनिंग की गई है। फुटबॉल में भी जो उनके एरियाज हैं उसको पूरा बॉर्डर किया जाता है। सो इस तरह से डिजाइन किया है। देन इक्विपमेंट में क्या है, टीथर जो रनिंग इवेंट में ब्लाइंड के साथ जो स्कॉट गाइड होता है वो टीथर के साथ पकड़ के देन रन करते हैं। ओके, अब फुटबॉल में क्या है, जो उनका गाइड होता है गोल पोस्ट के पीछे होता है, वही साउंड के हिसाब से जो अंदर जो पांच विजुअल इम्पेयर्ड प्ले करते हैं वो उसी से अपना ओरिएंटेशन मूवमेंट रखते हैं। गोल बॉल में तो सेम नहीं है। गोल बॉल में कोचेस बीच में बोल नहीं सकते, ब्रेकआउट में ही उसको गाइड कर सकते हैं। ऋषिकांत जी थोड़ा सा लोगों को बताना चाहेंगे ये जो गाइड एंड स्विमिंग में टैपिंग की जाती है। स्विमिंग में भी शायद जो जब फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे गाइड उनको टैप करता है। कुछ सर पे होता है एक स्टिक सा, आगे बॉल लगा होता है, वो सॉफ्ट बॉल, उसको सर पे टैप किया जाता है कि उसका 50 मीटर कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स एंड उस तरह से डिजाइन किया गया है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। जिससे सेफ्टी मिले, उनको कोई इंजरी नहीं हो। थोड़ा सा ये बताइएगा ऋषिकांत जी, ये जो गाइड रोप है और थेतर है, ये क्या होता है, लोगों को बताइए। सर जैसे जो टीथर जो ज्यादातर यूज करते हैं ट्रैक इवेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, क्या, फोर हंड्रेड ये मीटर क्या होता है, ये क्या होता है ये लोग। होता है कि जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जैसे ट्रैक में 8 लोग रहते, जो नॉर्मल पीपल जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेन में भागते हैं, बट जो विजुअली इम्पेयर्ड B1 और B2 स्पेसिफिक होता है, वो ट्रैक एक दो लोग एक ही ट्रैक में होते हैं। और जो B1 के साथ जो या B2 के साथ जो गाइड होता है, वो एक तीथर, एक रस्सी होती है जो दोनों के हाथों में बंधी होती है, जिसके कारण वो दूसरे के ट्रैक में न घुसे और एक प्रॉपर लेन में जाएं। जिसे ये तीथर का रूल्स है। सही सही है। तो देखिए ये एक दो जो हमारे दृष्टिबाधित हैं, एथलीट हैं, ब्लाइंड एथलीट, और उसके साथ जो गाइड रनर है, एक रस्सी में दोनों बंधे हुए रहते हैं, तीथर बोलते हैं, और रोप जो होता है उसी को बोलते हैं। तो एक दूसरे को या तो रुमाल से या रस्सी से एक दूसरे को बांधे रहते हैं, जो एक दूसरे को डायरेक्शन देते रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा चीज़ें टर्म सब है कि ये जो गाइड रस्सी जो है उसको बोला जाता है तीथर को। तो ये हम उसको आप लोग को बताने का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन सेफ्टी मेजर्स इन ब्लाइंड स्पोर्ट्स। तो आप बताएंगे या मैं थोड़ा सा सेफ्टी मेजर में सर बता दूं आपको। हम्म। जैसे आजकल डिजाइन किया है ब्लाइंड फुटबॉल और जूडो, ब्लाइंड फुटबॉल और गोल बॉल में, इनके जो पहले हम लोग जो पहले जो वर्ल्ड में यूज करते थे, जस्ट एक ब्लाइंड फुट यूज करते थे। बट अभी के जो सेफ्टी पर्पज से गोल फिक्स एक है, जो गोल फिक्स आपको बिल्कुल ही जो हेड और नोज, ये दोनों को कवर करते हुए आई शेड लगाई जाती है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 4 और 5 थाउजेंड का आता है। वो गोल फिक्स फुटबॉल एंड गोल बॉल में यूज करते हैं, सो दैट कि बॉल आए तो आपको डायरेक्ट हिट ना करे। दिस इज सेफ्टी, राइट। एंड सेफ्टी के लिए एल्बो कैप, नी कैप, दो ये तो दीज आर द कंपल्सरी इक्विपमेंट जो फुटबॉल और गोल बॉल में यूज करते हैं। बट इन एथलेटिक्स में, ट्रैक इवेंट में कोई भी सेफ्टी का यूज नहीं होता है, बिकॉज सभी को इंडिविजुअली दो दो लेन दिया जाता है। सो बट ऐसे जो कुछ गेम्स हैं उसमें सेफ्टी पर्पज रखे जाते हैं, जैसे कि थ्रोइंग इवेंट के लिए, जैसे ब्लाइंड फुटबॉल एंड ये गोल बॉल। चलिए बहुत बढ़िया। सो द सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द ब्लाइंड स्पोर्ट्स। कोचेस शुड इंश्योर दैट एवरी एक्टिविटी इज conducted in a safe and well organized environment. So the key safety measures are inspect the playing area before the practice. अभ्यास से पहले मैदान का निरीक्षण करें। Then the remove all the obstacles and hazards. सभी अवरोध और जोखिम को हटाएं।
चेक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रेगुलरली, खेल उपकरण को नियमित जांच करें। इंश्योर प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन, जानते ही वार्म अप और कूल डाउन करवाना है। यूज प्रोटेक्टिव गियर्स वेन एवर रिक्वायर्ड, आवश्यकता अनुसार सुरक्षा उपकरणों को उपयोग करें। कीप फर्स्ट एड फैसिलिटीज अवेलेबल, जो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है उसको ध्यान रखना है। गिव क्लियर वर्बल इंस्ट्रक्शन बिफोर एवरी एक्टिविटी। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऋषिकांत जी, द रोल ऑफ कोच। रोल ऑफ कोच, इस मतलब एक कोच की जो भूमिका है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्पोर्ट्स, नॉट अ विजुअली इम्पेयर्ड, एवरी स्पेसिफिक एवरी गेम, है ना। तो कोच का जो खासकर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो एक बोलते हैं ना रोल मॉडल का काम करते हैं कोचेस, बिकॉज उनको सारा गाइडेंस और सारा उनको मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो नॉर्मल अकेले नहीं कर सकते हैं। जो कोच की आवाज पे करना या उनके सभी चीज उनको वॉइस पे ही होता है हर चीज, चाहे कोई भी गेम्स में। सो कोच का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कोच का तो मतलब बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का जो साथ होता है वैसा कोच का साथ है, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड के साथ। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोच का सर। बहुत अच्छा ऋषिकांत जी, मैं उसी को थोड़ा सा कर देता हूँ। ये कोच इज मोर देन ए ट्रेनर। द कोच builds confidence, independence, discipline, and teamwork among the athletes. So, what are the responsibilities? Responsibilities are the teach correct techniques, maintain safety, motivates athletes, encourage equal participation, develop communication skills, and build confidence and self-reliance. तो ये हमारा जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और संचार कौशल को विकसित करना, ये सब है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दैट इज ए कम्युनिकेशन टेक्निक्स, बता पाएंगे या कुछ मैं हिंट दे दूं उसका? नहीं सर, बता दो सर। कम्युनिकेशन स्किल में क्या है कि कोचेज कम्युनिकेशन ही करते हैं और खासकर प्लेयर्स भी हैं आपस में, जैसे ब्लाइंड फुटबॉल है या जूडो में, सॉरी, ब्लाइंड फुटबॉल है या गोल बॉल है, इनमें कम्युनिकेशन, या ब्लाइंड क्रिकेट है, एक दूसरे को वॉइस देते हैं प्लेयर्स कि आप कितने डिस्टेंस में हैं, आप किस जगह, आपकी सीटिंग किस जगह पे है। सो ये कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट करता है रोल्स किसी भी गेम में। करेक्ट, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम दृष्टिबाधित का सबसे बड़ा हथियार जो है साउंड होता है, कम्युनिकेशन होता है। कहीं भी आपने देखा होगा कि आपके कदम चाप से या आपके आवाज से या आपके जो हमारा थ्री डायमेंशनल या कोई भी आभास बोलते हैं ना कि तीसरी आंखें हैं, सो हमारे दृष्टिबाधित एंड ब्लाइंड को होते हैं, वो आपकी उस चीज को ज्यादा समझते हैं। सो effective communication is essential for visually impaired athletes. So communication methods, what are the clear voice commands, consistent instructions, positive encouragement, coordination, immediate feedback, respectful language, like example, ready, play, stop, like this. Okay, thank you. Next slide, please. Next slide, please. तब तक नेक्स्ट स्लाइड हो रहा है, तब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सृष्टि का। सी हैज डिजाइन दिस और एवरी डे सी हेल्प्स अस टू दो, हमारा जो पीपीटी है उसको आपके सामने जो प्रेजेंट होता है उसको सृष्टि अच्छे से सेट करके दे देती है। तो आई थैंक यू सृष्टि। अगर आप हैं इसमें, टेक्निकल चीज को भी देख रही हैं, सृष्टि है इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट दिस इज द ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। थोड़ा सा उसमें रीड आउट कर दें कि आपको बताने में इजी होगा। मैं बता दूंगा सर। जैसे अच्छा, इसमें साउंड ओरिएंटेशन है ना, जो बोलते हैं जैसे हम लेफ्ट राइट में कौन बैठा है तो एक साउंड ओरिएंटेशन भी है ना। दूसरा है कि डायरेक्शन, कि आप लेफ्ट में बैठा है कौन, राइट में कौन बैठा है, या आगे फ्रंट में कौन है। तो ये कम्युनिकेशन ही है एक तरह का, कि एक दूसरे से बात करके ही आपको उसमें पता चलता है कि कौन किस जगह पे प्लेस है। एंड वॉकिंग टेक्निक्स, मतलब जो हम वॉकिंग टेक्निक जैसे लॉन्ग जंप कर रहे हैं ट्रैक इवेंट में, है ना, या और भी जैसे रनिंग का है ये, तो वॉकिंग टेक्निक में आपकी कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए कि जिससे आपकी और ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो रनिंग में। और रनिंग विद गाइड, सो गाइड का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आपका एक भी स्टेप अगर गाइड ने गलत किया तो आपका भी स्टेप गलत होगा। सो इज वेरी, मतलब जो खासकर रनिंग इवेंट की बात है, रोल ऑफ गाइड का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट फैमिलिटेशन,
फेमिलियराइजेशन, खेल मैदान की जानकारी। हाँ, खेल मैदान की जानकारी, जैसे कि हमने अभी डिजाइन किया है तो गोल बॉल के बारे में, या किसी भी ग्राउंड का ओरिएंटेशन, कि कितनी चौड़ाई होती है, कितनी लंबाई होती है, कितने कितने मीटर पे क्या फाउल होता है, तो सब चीज ये चीजें देना होता है कि हाई बॉल क्या है, लॉन्ग बॉल क्या है, कौन कौन सी पेनल्टी होती है, तो इस तरह से डिजाइन किया है। एंड एंड सेफ्टी तो रखना ही। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो मतलब आप समझिए कि खेल जब खेलते हैं तो आपका पूरे शरीर का विकास होता है, आपका एक अलग ही पर्सनालिटी होती है स्पोर्ट्स से। सो ये डेवलपमेंट ऑफ द, आपको एक अलग ही वो होता है जो वेरी किसी गुड। भी उसके लिए। जब अभी मैं बता रहा था स्पेशल अवेयरनेस, जैसा स्थानिक समझ, सो ट्रेनिंग इंक्लूड साउंड ओरिएंटेशन, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन, वॉकिंग टेक्निक्स, रनिंग विथ गाइड, कोर्ट फेमिलियराइजेशन, स्पेशल अवेयरनेस। तो ये हमारा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो है, बहुत दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे कम्युनिटी कोच अपने जहाँ अपने क्षेत्रों में ब्लाइंड एथलीट के साथ काम करेंगे, तो फर्स्ट जो है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो है स्टार्ट, उसी से हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राहुल जी। चलिए राहुल जी जब तक नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं तब तक हम धन्यवाद और को देंगे सत्यम शिवम का, उसने टेक्निकल टीम है, वेबसाइट और बाकी चीज़ों का जो है आपके पास जो एकेड वगैरह आ रहा है इज डूइंग, तो उनका भी हम धन्यवाद देते हैं, और राहुल जी का भी। राहुल जी शायद आवाज़ जा रही है राहुल जी? यस, नेक्स्ट, ठीक है ना। अब आ गया इंट्रोडक्शन टू गोल बॉल, आप बताइए। सो गोल बॉल का जो आपके बारे में, वी आर डिफाइनिंग द गोल बॉल. Goalball is a Paralympic Games in since 1948 after the Second World War. First time introduced the goalball in 1976 Toronto Paralympic Games. Every 4 year Paralympic Games in goalball every time in Paralympic events and Para Asian Games also. So para जो गोल बॉल है एक 9/18, जैसे बास्केट वॉलीबॉल की ग्राउंड का माप क्या होता है, 9/18, 9 चौड़ाई होती है, विड्थ होता है 9, एंड लॉन्ग लंबाई जो होती है वो 18 होता है, और उसको इक्वल 3 3 मीटर्स में डिवाइड किया जाता है। और इसमें मुख्यतः 6 प्लेयर खेलते हैं, जो 3 अंदर रहते हैं, इनसाइड 3, और 3 सब्स्टिट्यूट के रूप में रहते हैं, कोई इंजरी हो या जो भी सब्स्टिट्यूट चेंज करने का नियम है इसमें। बहुत सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अराउंड 64 पेजेस का है इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इसमें मुख्यतः 12 से 13 रेफरी को भी यूज किया जाता है। 4 एवरी कॉर्नर पे रेफरी होते हैं, 2 सेंटर रेफरी होते हैं, 4 से बहुत सारे, जैसे 9 सेकेंड्स टाइम कीपर होते हैं, 45 सेकेंड्स होते हैं, ताकि गेम में जैसे बॉल्स, अब किसी ब्लाइंड के पास बॉल आता है, वो उसको बॉल तुरंत थ्रो करना होता है विद इन 9 सेकेंड्स। अगर 9 सेकेंड से ऊपर रखते हैं तो फाउल होता है। और जो 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 ब्लाइंड लेफ्ट सेंटर राइट तीनों जगह अपने अपने ओरिएंटेशन एरिया में बैठते हैं, और नेक्स्ट बॉल जो स्टेप जो थ्रो होता है वो लैंडिंग एरिया में होता है। और जो लैंडिंग एरिया के जो अगर 6 मीटर के बाहर बॉल गई तो इट शुड बी पेनल्टी। तो पेनल्टी में यूज जो करते हैं, जो टीम पेनल्टी मतलब फॉल करता है, वहां सिर्फ एक प्लेयर डिफेंड करता है। तो एक प्लेयर के लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज बॉल फास्ट आती है और वो लेफ्ट राइट 9 मीटर का होता है, तो ऑटोमेटिक वो बॉल गोल में कन्वर्ट होता है। 90%, बहुत कम चांसेस होते हैं उसको रोकना। एंड बाकी जो आई शेड्स, आई गोल फिक्स के जो आई शेड लगाए जाते हैं इनके, और नी कैप, एल्बो कैप्स, और बॉल जो होते हैं उसमें 2 घंटियां होती हैं। और जैसा कि वीडियोस में दिखाए जा रहे हैं, ये पटना का आई थिंक। सो मार्किंग भी वैसी की जाती है टेक्टाइल की तरह, जो ब्लाइंड छू के पता हो कि वो अपने किस जगह पर सिटिंग है उनकी। और इसमें बेसिकली जो है गोल बॉल में जो है, जो बॉल की जो वजन होता है वो 1.2 kg होता है ना, ये इसकी वजन है। और बॉल ऑलवेज ब्लू कलर का होता है। तो ये है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में ही ब्रीफ किया, बिकॉज बहुत सारे इसमें पेनल्टीज हैं। अगर इसमें प्लेयर्स या ऑड कोचेस भी अगर वो साउंड गलत बोल बीच में आवाज दे रहे हैं या कुछ गाइड कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो पेनल्टी, है ना। बहुत सारी इस तरह की पेनल्टीज होती हैं।
लॉन्ग बॉल, हाई बॉल, नॉइस पेनल्टी, तो ये सब पेनल्टीज हैं। और इसमें आईपीसी जो है, सॉरी, इप्सा इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन रेफरी क्लिनिक भी कराती है। और इसमें रेफरी क्लिनिक हम भी इस बार नडियाड में नेशनल रेफरी क्लिनिक करा रहे हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप लोग आइए, रेफरी क्लिनिक कीजिए। आपके स्टेट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट्स को, जो जहाँ भी विजुअली इम्पेयर्ड के डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशन चल रही हैं, वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये जो गोल बॉल आपको लग रहा है इतना ईजी, पूरे यूरोप में खेला जाता है, अमेरिका में खेला जाता है, अफ्रीका खेला जाता है, और एशिया में तो पता ही है, चाइना बहुत डोमिनेटिंग है, ईरान है, कोरिया है, जापान है। आपको बता दूं, अभी इप्सा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था चाइना हांगजोंग में। ऑलरेडी जो चाइना एंड ब्राजील, ये दोनों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं लॉस एंजलिस के लिए। तो गोल बॉल एक पैरालंपिक इवेंट है। इसमें बहुत ही पावर की जरूरत होती है, स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। ये तीनों समीकरण, जो समीकरण मिलके ही बनता है प्लेयर का। तो स्पीड भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो ये गोल बॉल का है सर डेफिनेशन। थैंक यू। चलिए, आप जैसे बोले, हमने आपको वीडियो भी दिखा दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गोल बॉल कोर्ट एंड इक्विपमेंट्स थोड़ा बता दीजिए। हाँ, गोल बॉल जैसे टेक्टाइल की जो मार्किंग होती है 9/18 की, उसके नीचे जो हम कपड़े, इजी वे में बताता हूँ, जो हम रस्सी सुखाते हैं जिसे कपड़े पे, वो पतली 0.mm की 0.22 mm की रस्सी होती है। और आई शेड्स चाहिए, जो, और इंडोर स्टेडियम होना चाहिए, वॉलीबॉल ग्राउंड 9/18 का, एंड टेक्टाइल होना चाहिए। दोनों साइड में जो गोल पोस्ट होती है 9/18, और उसकी जो हाइट है 1.3, जो गोल बॉल की हाइट होती है ना, वो होता है। इक्विपमेंट में बॉल चाहिए, आई शेड चाहिए, नी पैड्स, एल्बो गार्ड एंड एल गार्ड एंड चेस्ट थाई पैड, ये सब भी चाहिए होता है, जो आपको सेफ्टी पर्पस के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेसिक रूल्स ऑफ गोल बॉल। बेसिक रूल सर, मैंने बोला ना सर, ये इसमें बहुत ही हमें, कभी हम लोग पूरे पैन इंडिया को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बहुत सारे कोर्सेज हमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके आना पड़ेगा। तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी, मतलब आपको रिफाइन कर सकते हैं। बहुत डीपली रूल्स हैं सर, है ना ना, सर। मैं बस एक बार खाली आपके जो बोला मैं उसको कर देता हूँ। ऑल प्लेयर्स वियर जो आई सेट्स, आंख, जो आंख में पट्टी है या लगा दे, या जो आई सेट होता है, या उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड फोल्ड। और उसके साथ साथ जो भी आई सेट बनाता है कि वो दिखाई नहीं दे, उसको पट्टी उट्टी लगाते हैं, है ना। इसके बाद हम्म। क्या है कि टीम्स हैव 3 प्लेयर्स, ओनली 3 प्लेयर्स खेलते हैं। द बॉल मस्ट रिमेन ऑन द फ्लोर व्हाइल रोलिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। खिलाड़ी के पूरे शरीर से गेंद रोक सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है गोल बॉल में। ठीक है। देन द प्लेयर्स डिफेंड देयर गोल यूजिंग देयर बॉडी, बॉडी के किसी पार्ट से वो रोक सकता है बॉल को। द टीम स्कोरिंग मोर गोल विंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिसनिंग, क्विक रिएक्शन, टीम वर्क और कम्युनिकेशन, ये जो इसमें रहेगा वही गोल बॉल का अच्छा, विजेता होगा। गेम में जो गोल बॉल का जो इवेंट है सर, जो 24 मिनट का होता है, 12 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है, और फिर 5 मिनट ब्रेक के बाद 12 मिनट्स, टोटल 24 मिनट्स का गेम होता है सर, है ना। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस टाइम ये हम लोग एशियन गेम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, गोल बॉल का? नहीं सर, एक्चुअली हमें टर्की में अप्रैल में टर्की जाना था। हम लोग टर्की नहीं जा पाए गए, और रूल्स यही कहता है कि आपको एशियन क्वालिफिकेशन के लिए, तो, और लास्ट टाइम जो मैं एशिया, एक्चुअली क्या होता है सर, कि यूरोपियन चैंपियनशिप, अमेरिकन चैंपियनशिप, अफ्रीकन, तो एशियन चैंपियनशिप इस्लामाबाद में लास्ट ईयर हुआ था। और पाकिस्तान के ड्यू टू, आपको पता ही है, पाकिस्तान हम जाके खेल नहीं सकते, क्रिकेट तो है नहीं कि दुबई में हो जाएगा, तो इसके हम्म, इस्लामाबाद भी हम नहीं जा पाए। सो नाउ अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं हम यूथ के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए, गोल बॉल स्किल्स का कुछ है दैट हाँ, ऑलरेडी गोल बॉल स्किल के बारे में बता दूं सर। इसमें क्या होता है बॉल बॉल में, मेनली डिफेंस, थ्रो। तो डिफेंस में क्या है कि हम ब्लॉक करते हैं, तो जो ब्लाइंड ओरिएंटेशन एरिया में है, सेंटर और लेफ्ट राइट, सो अपने जगह पे वो बिल्कुल ही फ्लैट लीड जाता है। और जो आपका जो लेग्स है, वो इतना ऊपर उठता है कि बॉल अंदर से क्रॉस ना हो, ताकि बॉल मैक्सिमम हाइट पे कवर कर सके। पैरेलली आप हैंड्स को भी उतना ही कवर करते हैं कि बॉल आपके ऊपर हाथ से ना जाए, तो उसको बोलते हैं डिफेंस। थ्रो के लिए होता है 2 टाइप्स के, 3 टाइप्स के थ्रो होते हैं, 1 स्टेप थ्रो, थ्री स्टेप थ्रो।
सो क्योंकि अब मैक्सिमम 6 मीटर को यूज करके आप थ्रो करेंगे, स्पीड से रनिंग करके फेंकेंगे, तो आपकी बॉल की स्पीड ज्यादा फास्ट जाएगी। एंड ब्लॉकिंग, डाइविंग एंड किकिंग, रोलिंग। रोलिंग जब करते हैं, जब हम डिफेंस करते हैं, बॉल टकरा के पीछे की हो जाती है तो रोल करके बॉल पकड़ते हैं। एंड कभी की बॉल आती है तो हम डाइव मार के किक मार देते हैं पैर से, तो बॉल आउट से चली जाती है, तो डिफेंस ही है। एंड डाइविंग, हाथ से लगा के हम बॉल को पुश कर देते हैं बाहर की साइड, तो दीज आर द आपको डिफेंस टेक्निक है। एंड ब्लॉकिंग है गया सर, डाइविंग, डिफेंसिव, और टीम कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में जो सेंटर में बॉल आ रही है, सेंटर के साइड में जा रही है, तो सेंटर का बहुत रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दोनों साइड को कवर करना है। ये है सब। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Then the coaching goal ball. So the good goal ball coach should be demonstrate हाँ, each गोल बॉल में skills. सर, गोल बॉल में देखिए, पहली बात तो फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल करता है। बहुत ज्यादा फिटनेस चाहिए। 24 मिनट आपको बहुत ही, हमें गेम को बहुत फास्ट खेलना होता है ना। सो इसके लिए बहुत हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें जिम वर्क भी चाहिए इसके अंदर। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज भी करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, एंड स्पीड के लिए एक्सरसाइज, रनिंग मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये पूरा टोटली कॉम्बिनेशन के साथ ही आप गोल बॉल को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं अपनी थ्रोइंग और स्किल को। Next slide please. एक चीज और भूल गया सर, एक चीज भूल गया। अगर बोलो। जो टीम पहले गोल 10 गोल कर लेता है, वो विनर हो जाता है। अच्छा, दोनों में से जो फर्स्ट 10 जो कर दिया लगातार, हाँ, या सपोज दैट किसी टीम का 5 है और उस हाँ, उधर उन्होंने 15 कर दिया है, तो 10 का डिफरेंस हो गया, 16 कर दिया, तो 10 का ओके डिफरेंस तो विनर हो जाएगा। ओके, अब गॉट द 24 मिनट गेम नहीं होगा, वहीं पे गेम विनर कहला जाएगा जो 16 कर दिया। गॉट द पॉइंट। सो नाउ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन गोल बॉल, उसमें क्या है? द आई सेट्स फेमिलराइजेशन है, लिसनिंग टू द बेल बॉल, कोर्ट ओरिएंटेशन, बेसिक थ्रोइंग प्रैक्टिस, रोलिंग प्रैक्टिस, blocking practice, team communication exercise, mini goal ball match, learning by doing builds confidence. Yes, कुछ बोलना चाहेंगे? तो हाँ सर, इसमें वही बता रहे हैं, बेसिक थ्रोइंग प्रैक्टिस। जैसे हम मेडिसिन बॉल से अपनी 1 kg, 2 kg, 3 kg से, जब मेडिसिन बॉल जो 3 kg से हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिक 1.2 kg का जो बॉल मिलेगा, हमें लाइट लगेगा और थ्रो की आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। और कोर्ट का ओरिएंटेशन के लिए बार बार हम अपने आप को बोलते हैं कि लेफ्ट राइट होना, जैसे साइड से अपने अपोजिट टीम को बता के, बिना बताए राइट से लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट वाला सेंटर आके खेलेगा, तो ये कोर्ट का ओरिएंटेशन होता है। और बॉल को सुनने की क्षमता बढ़ाना, है ना। रोलिंग प्रैक्टिस, मतलब बॉल पीछे जाती है तो आप बार बार पीछे बैक करके पकड़ना। ब्लॉकिंग, तो ऑलरेडी ब्लॉक करना है बॉल को, पूरी फुल लेंथ अपनी बॉडी को स्क्वीज पूरा स्ट्रेट करना है। कभी भी जैसे बोलते हैं ना, कैनन कैनन पोजिशन, इट मीन जब हमें सर्दी लगती है तो हम अपने एल्बोज एंड नीज दोनों को बेड, जस्ट लाइक जैसे सर्दी लगती है वैसे हम बेड लेट जाते हैं और जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, दैट इज द ब्लॉकिंग पोजिशन, राइट। टीम कम्युनिकेशन, तो आपको अपने टीम के साथ संतुलन और आपस में बात करके हम कहाँ कैसे स्ट्रेटजी प्लानिंग, है ना। एंड मैचेस तो देखिए, ज्यादा हमें मैचेस खेलने को मिलेगा। जैसे अभी हमने गुजरात में गोल बॉल प्रीमियर लीग कराया, गुजरात ने कराया फर्स्ट टाइम, मैं भी वहां पे था। अभी इंडिया में हम गोल बॉल प्रीमियर लीग कराने वाले हैं, आफ्टर द सेकेंड सीनियर नेशनल हम अयोध्या में ले रहे हैं, और उसके बाद हम गोल बॉल पूरे इंडिया में गोल बॉल प्रीमियर लीग कराएंगे। सो आप लोग जो भी स्टेट्स है, आप आइए, सीखिए और अपने स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट को विजुअली, क्योंकि देखिए, हर गेम, ब्लाइंड जूडो हो या फुटबॉल हो, क्रिकेट के लिए नॉर्मल कोचेस चाहिए, पर गोल बॉल बेसिकली डिजाइन ही किया गया विजुअल इम्पीडेड के लिए। सो इसके लिए किसी को एनआईएस और बीपीएड एमपीड करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप लोग आइए और जुड़िए, बहुत ही अट्रैक्टिव इवेंट है। अजय है, मैं तेलंगाना टीम वुमेन्स टीम के कोच है। मेरा टीम मेंबर्स, My name is myself Radhika. Myself Preeti. कैसा लग रहा है बताओ? ऐसा जाने का अच्छा लग रहा है। अच्छा खेलेंगे। ये शिवाजी सर, ये मेरा स्टूडेंट है, ये लड़का। चलिए,
तो रेडी रेडी डिस्ट्रिक्ट तो आप लोग जो है ये बिहार ब्लाइंड्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप देखेंगे तो क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको उसमें ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स का जो है डाला हुआ है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा साउंड बंद कर देता हूँ। हाँ जस साउंड नहीं बंद होने का काम चल रहा था, ठीक है। तो ये मैं जितने लोग हैं मैंने यूट्यूब आज डाल दिया है लिंक का। आप इसमें सीखना चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिहार ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उसमें बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। सो नेक्स्ट देन ब्लाइंड क्रिकेट, ऋषिकांत जी। हाँ सर, ब्लाइंड क्रिकेट तो सर एक नॉर्मल के बराबर ही है। पर B1 का क्या है, B1 जब खेलता है टोटली इसमें 11 लोग खेलते हैं, नॉर्मल में भी 11 लोग खेलते हैं। और ब्लाउंड बॉल में साउंड होता है ना सर। और हाँ जो जो विकेट भी होता है, विकेट भी जो होता है वो आयरन का होता है, जिसका बॉल बॉल लगे विकेट में तो पता चल जाए कि बैट्समैन आउट हो गया है। बॉल में साउंड होते हैं, छर्रे होते हैं, साइकिल के जो छर्रे होते हैं वही होते हैं। और नॉर्मली बॉल जो हम नॉर्मल में खेलते हैं बॉल ओवर आर्म खेलते हैं, ब्लाइंड्स में अंडर द आर्म खेलते हैं। और वही होता है करेक्ट कि जैसे करेक्ट जैसे करेक्ट करेक्ट, नीचे से बॉल को फेंका जाता है, अंडर आर्म्स खेला अंडर आर्म, जाता उसी को बोला ना शिवाजी सर, अंडर आर्म है। नीचे से। हम्म। और उसमें भी फाउल होता है, जैसे कि आपका बोलते हैं ना कि जो बोलते हैं नॉर्मल में क्या है कि कंधे से ऊपर गया तो बाउंस, एक बाउंस अलाउ है। पर यहाँ पे नहीं अलाउ है। यहाँ पे क्या है कि अगर हाफ पिच के पार बॉल गई तो नो बॉल, राइट। दूसरा चीज कि B1 अगर एक रन बनाता है तो उसको डबल मिलता है, अगर 4 रन मारता है तो 8 मिलता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है शिवाजी सर। गॉट द पॉइंट। तो और आपको ये पता ही है कि क्रिकेट में वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप जीता, गवर्नमेंट भी फैसिलिटी कर रही है। अपना ब्लाइंड मेंस की टीम तो ऑलरेडी 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। बहुत अच्छा ब्लाइंड क्रिकेट में भी काम बिहार हो रहा है। में, बिहार से जो महिला पार्टिसिपेट्स की थी, बच्ची हमारी बक्सर की, उसको सरकार ने कितना अमाउंट दिया मालूम है? कितना अमाउंट दिया? 17 लाख रुपया, 17 lakhs, उससे ज्यादा दिए। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्लाइंड क्रिकेट ना, और थोड़ा सा कर ले। हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट क्लासिफिकेशन एंड इक्विपमेंट्स लाइक B1 टोटली। ब्लाइंड क्लासिफिकेशन में यहाँ भी B1 B2 B3 होता है। 11 में से B1 4 होंगे, B2 भी 4 होंगे और B3 3 होंगे आई थिंक। तो टोटल ये 11 ही है। इसमें भी समीकरण तीनों का कॉम्बिनेशन। और इसमें कोई आई पैचेज और कुछ नहीं बांधे जाते हैं, है ना सर। कोई किसी तरह का कुछ बांधा नहीं जाएगा। B1 के लिए बांधा जाता है, B2 B3 के लिए नहीं बांधा जाता है। एंड इक्विपमेंट, बॉल चाहिए, बैट चाहिए, एंड ग्राउंड चाहिए, एंड स्टंप्स, एंड प्रोटेक्टिव में वही पैड्स एंड ग्लव्स एंड हेलमेट, एंड यही सब शूज, है ना सर, ये सब चाहिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेसिक रूल्स ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट ऑलरेडी यू हैव स्पोकन, सो मैं थोड़ा सा उसको पढ़ देता हूँ। ब्लोअर अनाउंस प्ले बिफोर द ब्लो, उसको बोलना पड़ता है, गेंदबाज को गेंद फेंकने से पहले प्ले बोलना पड़ता है। देन बॉल इज बॉल्ड अंडर आर्म, जिस ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है। प्लेयर्स रिले ऑन द साउंड्स ऑफ द लोकल, लोकेट द बॉल। हाँ, खिलाड़ी को गेंद की आवाज उसकी दिशा से पहचानता है। देन टीम कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस, उसको पूरे कम्युनिकेशन बात होते रहना चाहिए। मॉडिफाइड स्कोरिंग रूल्स प्रमोट्स इक्वल पार्टिसिपेशन, उसमें इसेंशियल स्किल्स व्हाट आर द लिसनिंग, टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बैटिंग बॉलिंग एंड फील्डिंग, थोड़ा सा उसमें ऑलरेडी हमारे ऋषिकांत जी ने बता चुके हैं। जस्ट बैटिंग, लिसन केयरफुली टू द बॉल, मेंटेन प्रॉपर स्टैंस, सही मुद्रा बनाए रखना है, एंड स्विंग विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ शॉट खेलना है। बॉलिंग में क्या है? गिव द क्लियर वर्बल कॉल, बॉल विथ द करेक्ट लाइन एंड लेंथ। एंड फील्डिंग क्या है? ट्रैक द साउंड ऑफ द बॉल, कम्युनिकेट विथ टीममेट्स, स्टॉप द बॉल एंड सेफ्टी, सुरक्षित तरीके से गेंद रोके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Now athletics, the athletics for the athlete with visual, हमारे ऋषिकांत जी ने बताया कि वो एथलेटिक्स में शुरुआती दौर में उन्होंने कई इंटरनेशनल मेडल जीते हैं. सो would you like to हाँ, say? बता देता हूँ सर. एथलेटिक्स में स्प्रिंट, मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस, ये रनिंग में डिफिनेशन है. और ब्लाइंड्स का जो इवेंट है 100 मीटर से लेके मैराथन, ये सारे ओलंपिक इवेंट है. एंड जंप्स में लॉन्ग जंप ही इवेंट होता है और उसके साथ और कोई इवेंट नहीं होता है. B2 B3 में ट्रिपल जंप भी होता है, पर अभी पैरालंपिक में नहीं है, पर पहले होता था. थ्रोइंग में शॉर्ट फुट, डिस्कस, जैवलिन एंड रोड रेस, मैराथन. सो यही सब रूल्स हैं. B1 को बताया ही, B1 को आई शेड जरूरी है यहाँ पे भी, है ना. टीथर होगा. लॉन्ग जंप में आपको ओरिएंटेशन पे ही जो कोचेज होंगे या गाइड होगा, वो क्लैप के हिसाब से आपको जंप्स करना है. थ्रोइंग इवेंट में भी ऐसे ही है. थ्रो के समय वो आपका गाइड होगा, वो क्लैप करेगा, देन उसी दिशा में थ्रो होता है. सो ये है. एंड इसमें कोई जो ब्लाइंड के इवेंट में हर्डल्स नहीं होता है. जैसे नॉर्मल में क्या 110 मीटर हर्डल्स रन होता है, या पोल वॉल्ट होता है, या हैमर थ्रो होता है. तो इस टाइप के जो रिस्की गेम है ये नहीं होते हैं. जिसमें कोई बाधा आए वो गेम नहीं होता है. बिना बाधा वाले सारे गेम्स है. रनिंग, जंपिंग्स, जो लॉन्ग जंप एंड थ्रोइंग इवेंट. सो ये सारे इवेंट है सर. Okay, thank you. Next slide, please. इक्विपमेंट, इसमें इक्विपमेंट जो मैं बता दूं शिवाजी सर, बोलिए. इक्विपमेंट जो एथलेटिक्स में जो ब्लाइंड को इक्विपमेंट मिलता है, ऑल कैटेगरीज में हल्के इवेंट थ्रो दिए जाते हैं इक्विपमेंट. पर ब्लाइंड के केस में जो जेवलिन आपको नॉर्मल 800 ग्राम का ही मिलेगा, शॉर्ट पुट 7.26 kg का ही मिलेगा, डिस्कस 2 kg का ही मिलेगा. ये है. Okay, good. Then the guide runner. मैं थोड़ा सा पढ़ guide- देता हूँ, एक्सप्लेन करना, क्योंकि हमारे बहुत सारे साउथ इंडिया के हैं, तो विल टेल. अच्छा. द गाइड रनर असिस्ट एथलीट विद द विजुअल इम्पायरमेंट ड्यूरिंग द रनिंग द इवेंट्स. व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज? मेंटेन इक्वल पेस, प्रोवाइड डायरेक्शनल गाइडेंस, इंश्योर एथलीट सेफ्टी, encourage confidence, follow world para athletics rules. So guide theater is commonly used between the athlete and guide. Okay, बता दीजिए. टेथर के बारे में बता दिया मैंने, आप बता दिए. और कुछ बताना चाहें ऋषिकांत जी? किसी के बारे में सर? ये जो मैं गाइड रनर के बारे में जो बताया, यू वांट टू एक्सप्लेन मोर और ऑलरेडी फिनिश्ड? ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन मा सर कि गाइड रनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द रनिंग इवेंट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, ऑलरेडी यू हैव explained. Next slide, please. Yes. Then the inclusive coaching practices. So what are the inclusive coaching practices? Respect every athlete, use adapted technique methods, encourage equal participation, provides positive feedback, promotes independence, ensure safety, create a supportive environment. So would you like to say something? Inclusive No sir, coaching everything practice. is Already spoken. Okay, next slide, please. Then the practical activities. So what we can do, the participants will perform eye sets, वॉकिंग एक्टिविटीज. हम अपने आंख में पट्टी लगा के बांध कर थोड़ा सा कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू, देखिए, व्हाट आई एम सेइंग दैट एवरी पर्सन, जो पर्सन विद डिजेबिलिटी है, उनकी वी कैन फील आवर सेल्फ. समटाइम हम टोटली साउंड को म्यूट कर ले, कान में कुछ ऐसा लगा ले कि बाहर की साउंड नहीं पता चले. समटाइम वी कंप्लीटली जो है हम आँख में जो है पट्टी लगा ले, है ना. सो आई सेट पहनकर, तो इससे क्या होगा कि वी कैन अंडरस्टैंड देयर द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज. सो द गोल बॉल स्किल प्रैक्टिसेस, ब्लाइंड क्रिकेट बॉल आइडेंटिफिकेशन, गाइड रनिंग डेमोन्स्ट्रेशन हम कर सकते हैं. देन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, सेफ्टी ड्रिल्स, ग्रुप रिफ्लेक्टिंग. So that is for learning outcome will be the experience blind sports from the athlete. So blind sports का हम एक गाइड रनर एक बन सकते हैं. हम जो जितने सारे बताया है कि इतना करने के बाद वी कैन फील एंड अबाउट द ब्लाइंड स्पोर्ट्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डाउन डाउन डाउन. वीडियोस बहुत सारे हैं. सो टाइम हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो को हम दिखा देंगे, थोड़ा सा टाइम बचेगा तो. ये सारे के सारे वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द
Bihar Disabled Sports Academy and the Bihar Blind Sports Association. The videos are there, so you can go through there. Next slide, please. तो ये वीडियो हम दिखा दें, जो वीडियो है आप दिखा देंगे क्या? सुरा आप बता दीजिए जो सक्सेस स्टोरीज इंस्पायरेशन ऑफ ब्लाइंड एथलीट इन इंडिया, ऋषिकांत जी. हाँ सर, हेलो यस यस प्लीज. सर। जैसा कि आपको पता ही है कि अपने विजुअली इम्पेयर्ड में सो मेनी विजुअली इम्पेयर्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, सो और सभी को बहुत सारे जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड जो है ब्लाइंड क्रिकेट में है, पैरा एथलेटिक्स में है, आपका स्विमिंग में है एंड जूडो में है, जो सभी को मतलब क्लास 1 ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है स्पोर्ट्स कोटे में। तो ये अचीवमेंट है। गवर्नमेंट तो स्टेट बिहार गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट से आजकल है, आप एक पैरालंपिक इवेंट या पैरा एशियाई खेलों में मेडल लाते हैं तो आपको राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी दे रही है। एक जो है ना वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो को दिखाना था थोड़ा सा, कैसे जो है रन करते हैं गाइड रनर, कैसे ब्लाइंड हमारे एथलीट, थोड़ा सा शेयर कर देते हैं. Massa or will Oliveira produce the goods once more? क्या हो गया? The Massa or will Oliveira produce the goods once more? ये ब्लाइंड एथलीट का नहीं है, मैं ये ब्लाइंड का नहीं है सर, ये 44 कैटेगरी का। गलत हो गया. मैं थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ. एक ब्लाइंड का मैंने खोला था क्या, ब्लाइंड ब्लाइंड ये देखा था. मौजूदा विश्व चैंपियन डेविड ब्राउन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय धावक जेरोम एवरी के साथ मेल टीम में। मैंने उनके साथ पहली बार अभ्यास किया था। कोच ने तुरंत कहा तुम मेरे बाद उनके साथ दौड़ोगे और आप जानते हैं उसके बाद की कहानी इतिहास है। बस अब आगे बढ़ो, ड्राइव करो, अंदर ही अंदर रहो। जेरोम के साथ दौड़ते हुए मुझे बहुत दूर जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। चलिए, ये बहुत सारे वीडियोस हैं जो हम आप देख सकते हैं, और मैंने बिहार ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से ही मैंने इसको लिया. तो ये ऑलरेडी 11 o'clock हो गया है. कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन था उसमें. स्लाइड प्लीज. स्लाइड बंद हो गया क्या राहुल जी? लास्ट स्लाइड था, लास्ट लास्ट. उसके बाद नेक्स्ट assignments. So these are the assignments. Please note down, and we'll be sharing this PPT on the WhatsApp group. So participants are required to complete the following assignments. What explain the importance of the blind sports in the promoting inclusive and independence among the person with visually impaired. Then next is the describe the basic rules and equipments used in goal ball and blind cricket. Next, there are the prepare a simple coaching plan for introducing blind sports in your school or community. Next is the identify 5 safety measures that every coach should follow while क्या नाम है अपना? conducting the शिवाजी blind सर, sports activities. So, शिवाजी हाँ. सर, एक हमने Yes. गोल बॉल Yes, का yes. गोल बॉल का एक ऐप डेवलप गोल बॉल का ना एक ऐप डेवलप किया है, वो मैं हाँ. आपके साथ शेयर करूंगा। जितने भी अपने पैन इंडिया हैं उनके साथ शेयर करेंगे तो उसमें क्वेश्चन एंड आंसर ऑलरेडी आएंगे।
आप खुद सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, और सर्टिफिकेट ऑलरेडी जनरेटेड हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है, ये अच्छा चीज है। आप ग्रुप में जुड़ गए हैं, आप उनको शेयर कर दीजिए या हमको कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन लास्ट में है, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट आर द ब्लाइंड स्पोर्ट्स, व्हाई आर द अडेप्टेड रूल्स नेसेसरी? एनीबडी, वी कैन वी discuss? You want to say something? Explain the importance of goal ball, how the blind cricket different from the regular cricket, what are the role of guide runner? ये सब कोई, anybody wants to speak something who have the experience working with the blind athlete? Sir, good evening. This is Yeah. Chandrasekhar from Tamil Nadu. Yeah. Yes, sir. The question is blind sports, sir. Blind cricket and a goal ball. Two are the most common, sir, in blind sports. And individual athletes with a guide runner, sir. Good. Different between the goal ball and blind cricket. So the goal ball consists of 3 players in each team, sir. Yes. Yes, sir. So timing, so 12, say 2 off, sir. 11, 24 minutes total. 11 Break. players for the blind cricket. Yes. Yes, sir. The goal ball is consists of 3 players only. Plays 3 only. But Yeah, in the team, how many? Rishikant ji, in team में कितने रहते हैं? 6. So 6 player. 6 players. So 6 players. team consists of this, and we can keep changing the athletes. So while playing, there will be on the 3 athletes only during the Yes, playing. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good. Thank you, sir. Thank you. Anybody want to say? Sir, what is difference between simple cricket and blind cricket, sir? Yeah, you tell me. Blind crickets, what they have told is the B1, B2, B3. There are 3 types of 4, 4 and 3 combination are there, and underhand. Then there is in the ball, because the sound balls always have the sounds, rolling ball something. तो ये क्या है, ये differences? और नॉर्मल क्रिकेट में क्या है, हम अपर हैंड खेलते हैं, इसमें क्या अंडर हैंड खेलते हैं, ठीक है। एंड देन B1 अगर रन लेता है तो इस मल्टीप्लाई, 1 रन लिया तो 2 रन काउंट किया जाता है। B3 अगर करेगा तो ओनली 1 रन। तो अभी हमने बताया, PPT विल शेयर यू। एनीबडी वांट टू से समथिंग? जी सर, राजीव कुमार सर। यस। हेलो सर, संशोधित नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है सर? हाँ, क्यों पड़ती है? अडेप्टेड, क्योंकि नॉर्मल पीपल जो है वो रेगुलर खेलता है, लेकिन हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को अडेप्टेड स्पोर्ट्स, उसके हिसाब से हमने क्रिकेट खेलना है तो क्या किया हमने, साउंड लगा दिया, अंडर हैंड कर दिया, है ना, जिससे कि वो खेल सकते हैं। तो उसको अडेप्ट किया, अडेप्ट करने के लिए उसको संशोधित करना की आवश्यकता होती है। हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो भी खेल है उसको अडेप्टेड स्पोर्ट्स बोला जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसको, आर्चरी को कर लिया, आपने देखा ना कि आर्चरी में अडेप्टेशन हुआ है। हाँ, तो इसी को किया जाता है। ओके, सो Rishikant ji, can I ask one simple question? अवतार सिंह जी साहब, वेलकम यू। यस, प्लीज आस्क। Rishikant ji, do you come across multi-disability athletes as well? I mean, blind and hearing impaired together, or blind, इस तरह की कुछ multi-disability, do you come across that type of athletes as well? No, sir. How you will deal with them then? Like deaf blind. Yes. Deaf blind, yes. Rishikant ji, Yes, sir. you want to say कोई ऐसा दिव्यांग ब्लाइंड के No, साथ sir. वो क्या No, sir. No, sir. No, sir. No. Yes, sir. Multiple disabled can only visually impaired can participate in visually category, because visually deaf and dumb can't listen, ना sir. जो deaf and dumb सुन नहीं सकते। Very difficult, because the most of the rules are based on the sound system. So if the deaf and if a blind, say, I think it's not eligible to participate. Am I right? Yes, sir.
ओके, सो वो नहीं भाग Okay. ले सकते हैं अवतार सिंह साहब, क्योंकि ठीक है। we have to decide whether you have to participate in blind sports, whether you have to participate the means locomotor Hearing disability. impaired. No, yeah, hearing impaired or locomotor disability. You have to decide. And Thank you. next, okay, then Sir. okay. Yes, anybody wants to speak? Sir, what is difference between goal ball and floor ball? बताइए ऋषिकांत जी। अच्छा, गोल बॉल जो होता है वो हैंड से खेला जाता है, और जो टोर बॉल होता है वो पैर से खेला जाता है। नहीं पैर से। फ्लोर बॉल स्टिक से खेला जाता है, स्टिक होता है, हॉकी स्टिक होता है। फ्लोर बॉल जो फ्लोर है, बॉल ना? मैं फ्लोर बॉल का इंटरनेशनल कोच और रेफरी भी रहा हूँ। फ्लोर बॉल इज लाइक जो अपना एक स्टिक में जो है ना, हॉकी की तरह रहता है। फ्लोर में, वो फ्लोर में खेला जाता है, उसका राउंड बॉल होते हैं और वो इस पे खेला जाता है। तो फ्लोर बॉल में उसमें जो 11 जो है हॉकी की तरह 11 एथलीट होते हैं, और गोल बॉल में ओनली 3 एथलीट्स प्लेइंग होते हैं। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट एनीवन वांट Yes, टू sir. स्पीक? Yes, sir. I want to ask. या सर, जब ब्लाइंड क्रिकेट हम खेलेंगे तो वो एक्चुअली जो ब्लाइंड है जो खेल रहा है, तो जब वो रन लेगा तो उसे कैसा पता चलेगा कि एंड खत्म हो चुका है? बताइए अच्छा, ऋषिकांत जी। जो B1 जो खेलते हैं उनके साथ जो स्कॉट जो गाइड होता है, जो रनिंग उनका रनर जो होता है वो B2 या B3 होता है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो थैंक यू। और लास्ट में क्या है, लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हम लोगों ने किया है द एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ब्लाइंड स्पोर्ट्स, अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, आइडेंटिफाइड एडेप्टेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, demonstrate the basic knowledge of the goal ball, explain the fundamental of the blind cricket, and understood the athletics for the visually impaired. So apply safety measures during the training. So introduce blind sports actively in the schools and community. So अब हम कराने के लिए अपने क्षेत्र में हम इसको सीख गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हमको क्या लेकर जाना है इससे? ब्लाइंडनेस इज नॉट ए बैरियर टू द स्पोर्ट्स। दृष्टि बाधित खेलों के लिए बाधा नहीं है। एडेप्टेड रूल्स एंड इक्विपमेंट्स इंश्योर सेफ पार्टिसिपेशन। विशेष नियम एवं उपकरण सुरक्षित सहभागिता को सुनिश्चित करता है। देन द कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस। देन द कोचेज प्ले ए वाइटल रोल इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव स्पोर्ट्स प्रमोट्स equality, dignity, and the empowerments. So every schools are, बीच में क्या है सर? Thank you. Okay, thank you sir, अवतार सिंह साहब. So every schools and communities should encourage the participation of person with disability, including the blind person with blind. Next slide, last है. So this is the अपने ऋषिकांत जी की तरफ से है, स्पोर्ट्स हैव नो बैरियर ओनली अपॉर्चुनिटी। ऋषिकांत जी धन्यवाद। खेलों की कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ अवसर होते हैं। तो वी थैंक्स ऋषिकांत शर्मा जी, जो हमारे इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, पैरा एथलीट हैं, और अभी तो कोच और एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका में इन्होंने बहुत कम समय उनको दिया था। मैंने आज सुबह ही बात किया था, उन्होंने आकर किए, तो मैं बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू। स्टॉप कर दीजिए। और हम कुछ फीडबैक जानना चाहते हैं। कोई बेंगलोर मैडम, कर्नाटका, एनीबडी वांट्स टू स्पीक? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु से, पंजाब, नागालैंड, यू वांट टू स्पीक समथिंग? महाराष्ट्र से कोई? झारखंड, अजीत जी हैं, दृष्टिबाधित खुद हैं वो, अजीत जी फ्रॉम झारखंड। राजकुमार हो सकते हैं, राजकुमार। अजीत जी खुद दृष्टिबाधित हैं, ब्लाइंड हैं अजीत जी।
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। एक वीडियो जिसको देखना है देखेंगे, जिनको जाना है तो इन द लास्ट वी रनिंग द वीडियो। सो राहुल जी वीडियो को चालू कर दें, और जैसे वीडियो समाप्त होगा ऑटोमेटिकली वी क्लोज द टुडे इवेंट्स, टुडे दिस सेमिनार वेबिनार। राहुल जी अब मैं चला दूं? सर 1 मिनट। हाँ चला दीजिए, वीडियो जो आपको दिए थे वो चला दीजिए। पाँच मिनट का वीडियो है, हम लोग 5 मिनट भी एयर करेंगे। आज हम बिहार डिसेबल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा 20 जुलाई 2026 को आयोजित ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यानी टीटीटी के छठे दिन के मॉड्यूल पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है ब्लाइंड स्पोर्ट्स, और यकीन मानिए यह चर्चा उन सभी के लिए बेहद खास है जो मानते हैं कि खेल का मतलब सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं है, बल्कि यह सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस बेहतरीन कोट पर जरा गौर कीजिए। अडैप्टेड स्पोर्ट्स या अनुकूलित खेल असल में सिर्फ पसीना बहाने के बारे में नहीं है। ये एथलीट्स की आज़ादी और आत्मनिर्भरता का एक बेहद मजबूत पुल है। यहाँ एक कोच की भूमिका महज खेल की तकनीक सिखाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के अंदर वो गजब का आत्मविश्वास जगाता है जिससे वे मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह एक आज़ाद जीवन जी सकें। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन विषयों को कवर करेंगे। सबसे पहले ब्लाइंड स्पोर्ट्स की शक्ति, फिर वर्गीकरण, उपकरण और सुरक्षा के नियम। इसके बाद हम कोचिंग की कला पर बात करेंगे, गोल बॉल खेल को करीब से जानेंगे और आखिर में ब्लाइंड क्रिकेट के रोमांच को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, ब्लाइंड स्पोर्ट्स की शक्ति, समान भागीदारी और स्वतंत्रता। इस पूरे करिकुलम को दिशा देने वाले हमारे एक्सपर्ट हैं श्री ऋषिकांत शर्मा। इनका अनुभव लिटरली बहुत ही इंप्रेसिव है। वो पिछले 24 सालों से एक एक्टिव पैरा एथलीट हैं, लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं और भारतीय गोल बॉल टीमों के हेड कोच भी हैं। इसके अलावा वो दिल्ली विश्वविद्यालय और कैनरा बैंक में अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। इन्हीं के शानदार मार्गदर्शन में आज हम इस मॉड्यूल को डिकोड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वर्गीकरण, उपकरण और सुरक्षा, यानी खेल के मैदान को सबके लिए एक समान बनाना। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये ब्लाइंड स्पोर्ट्स की बिल्कुल नींव है। इसे ऐसे समझते हैं, B1 कैटेगरी का मतलब है प्रकाश की बिल्कुल भी पहचान ना होना। B2 में खिलाड़ियों की दृष्टि थोड़ी सीमित होती है और B3 में दृष्टि B2 से बेहतर होती है, लेकिन वे पैरा स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ये वर्गीकरण इसलिए इतना जरूरी है ताकि कोई भी खिलाड़ी अनुचित फायदा न उठा सके और खेल पूरी तरह से फेयर हो। अब सवाल ये आता है कि बिना देखे खिलाड़ी खेलते कैसे हैं? यहाँ काम आते हैं हमारे अडैप्टेड इक्विपमेंट्स, जैसे कि ऑडिबल बॉल जिसमें घंटियां होती हैं ताकि खिलाड़ी आवाज से गेंद की दिशा ट्रैक कर सकें। कोर्ट पर टैक्टाइल मार्किंग्स यानी स्पर्श से पहचानी जाने वाली रेखाएं होती हैं जिन्हें छूकर एथलीट खुद को ओरिएंट करते हैं। और हाँ, आई शेड्स, इनका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि सभी खिलाड़ियों का विजन लेवल बिल्कुल एक समान हो जाए। ब्लाइंड स्पॉट्स में ना सेफ्टी सबसे ऊपर आती है, इसमें कोई कोताही नहीं की जा सकती। कोच को खेल शुरू होने से पहले एक सख्त स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का पालन करना ही होता है। मैदान को चेक करने से लेकर हर खतरे को हटाने और स्पष्ट मौखिक निर्देश देने तक हर एक कदम ये पक्का करता है कि खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास और बिना किसी डर के खेल सके। चलिए आते हैं भाग 3 पर, कोचिंग की कला, मानवीय पहलू में महारत हासिल करना। किसी भी समावेशी खेल में कम्युनिकेशन यानी संचार ही सब कुछ है। कोच और खिलाड़ी के बीच की बातचीत बेहद स्पष्ट, लगातार और सम्मानजनक होनी चाहिए। सही समय पर सही फीडबैक दिए बिना कोई भी दृष्टिबाधित एथलीट खेल की बारीकियों को नहीं समझ सकता। अब जरा सोचिए, एक कोच को कोर्ट पर कैसा साउंड करना चाहिए? एकदम लाउड और क्लियर। तैयार, खेलो, रुकिए, बायां, दायां। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ऑडियो सिग्नल हैं जिन पर खिलाड़ी पूरी तरह निर्भर करते हैं। कोच की आवाज में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि मैदान पर खड़ा खिलाड़ी तुरंत और सही तरीके से रिएक्ट कर सके। अब बात करते हैं भाग 4 की, गोल बॉल पर विशेष नजर, जो कि एक प्रमुख पैरालंपिक खेल है। गोल बॉल के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी पहले से मौजूद खेल से अडैप्ट नहीं किया गया है, बल्कि इसे खास तौर पर दृष्टिबाधित एथलीट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है।
ये एक इंडोर कोर्ट पर खेला जाता है और हर टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ सभी के लिए आई शेड पहनना अनिवार्य है। और हाँ, एक बड़ा ही मजेदार नियम ये भी है कि खेल के दौरान दर्शकों को पिन ड्रॉप साइलेंस रखना होता है ताकि खिलाड़ी गेंद की घंटियों को साफ साफ सुन सकें। इस खेल की इंटेंसिटी देखिए। एक भारी घंटी वाली गेंद फर्श पर तेजी से रोल होते हुए आती है और बचाव करने वाले खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज सुनकर उस दिशा में अपने पूरे शरीर को डाइव कराकर गेंद को रोकना होता है। इसके लिए गजब की सुनने की क्षमता और पलक झपकते ही रिएक्ट करने की ताकत चाहिए होती है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 5, ब्लाइंड क्रिकेट को समझना, मैदान पर ध्वनि को ट्रैक करना। यह टेबल बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि गोल बॉल और ब्लाइंड क्रिकेट की रणनीतियों में कितना बड़ा अंतर है। जहां गोल बॉल में आई शेड पहनाकर विजन को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, वहीं ब्लाइंड क्रिकेट में टीम के अंदर B1, B2 और B3 खिलाड़ियों का एक स्मार्ट और संतुलित मिश्रण रखा जाता है। गोल बॉल में गेंद फर्श पर रोल होती है और क्रिकेट में उसे अंडर आर्म फेंका जाता है, जहां बैटर गेंद के अंदर की घंटियों की आवाज सुनकर अपना शानदार शॉट लगाता है। ब्लाइंड क्रिकेट के मैकेनिक्स को समझने के लिए इस एक नियम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी बॉलर अंडर आर्म गेंद फेंकता है तो उसे अनिवार्य रूप से प्ले बोलना ही होता है। ये महज कोई शोर नहीं है, ये वो क्रिटिकल टाइमिंग सिग्नल है जिससे बैटर ये समझता है कि गेंद हाथ से छूट चुकी है। इसी आवाज और गेंद की झनझनाहट से बैटर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बल्ले को स्विंग करता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से मिली जानकारी के बाद सोचने वाली बात यह है कि हम इन बातों को महज स्क्रीन तक सीमित ना रखकर असल जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। इन अडेप्टेड तकनीकों, चाहे वो ऑडिबल बॉल्स हों, टैक्टाइल लाइंस हों या स्पष्ट कम्युनिकेशन हो, इनका इस्तेमाल करके हम अपनी लोकल स्पोर्ट्स कम्युनिटी को सच में समावेशी कैसे बना सकते हैं। ये हम सब के लिए एक सवाल भी है और एक चुनौती भी, ताकि हर एथलीट अपनी आजादी और आत्मनिर्भरता का निर्माण कर सके। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऋषिकांत जी का धन्यवाद देता हूं, अपने सभी टीमों का, और खासकर राहुल जी। और शुभ रात्रि। और आपको मैं फिर से बता दूं कि जिनका जो है कम्युनिटी कोच का आई कार्ड नहीं मिला, इंतजार कीजिए, सबका बनेगा, क्योंकि वो प्रोसेस है, टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है। उसको इनबिल्ट है। और ये जो 3 हमारे AI से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स जो है हमारे वेबसाइट पर हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो जो कोच का ट्रेनिंग लिए हैं उन्हीं को ये आई कार्ड मिल रहा है। तो सो आप अभी वेबसाइट पर देख रहे होंगे कि वो डिस्प्ले करने के लिए किया गया है। कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं तो मैं या पायल या फिरदौस, क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. As we know, football is a body contact game. So, how to communicate the player to cover opponent man? During the goal ball? No, sir. For football blind अच्छा, ब्लाइंड फुटबॉल। player. Yes, sir. ऋषिकांत जी अभी हैं आप? क्या लेफ्ट हो चुके हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, लेफ्ट हो। ब्लाइंड फुटबॉल जो है, बॉल के अंदर एक आवाज रहती है, ठीक है? जैसे कि बॉल फुटबॉल होता है, उसके अंदर एक झुंझुने झुंझुने करके आवाज होती है। और जैसे 5 साइड फुटबॉल होता है, तो 5 साइड गोलकीपर हो गया, एक बैक फॉरवर्ड हो गया, है कि नहीं? तो वो जैसे सामान्य लोग खेलते हैं उसी तरह खेलते हैं, लेकिन जो आवाज के साथ जो है, ब्लाइंड फुटबॉल का हम वीडियो आप देखिएगा कि वो जो एक बच्चे दूसरे से टकराए नहीं, उसके लिए क्या कर रही है, यही पूछना चाह रहे हैं कि टकराए नहीं, इसी के बारे में पूछना चाह रही हैं? Yes, sir. हाँ, टकराए नहीं, तो उसके लिए वो उसको मालूम रहता है कि हम उससे बॉल कहाँ है, बॉल से प्रोटेक्टिव हाथ को सामने किए रहता है कि डायरेक्ट जो आकर उसमें चोट नहीं लगे। मेजर उसका रहता है कि हम बॉल को कैसे मारे, तो वो ट्रेंड किया हुआ रहता है ना? और बहुत ज़्यादा टकराने से फिर फॉल हो जाता है। इंटेंशनली अगर टकराया गया तो उसको फॉल माना जाता है, ऐसे टकराने से फॉल नहीं माना जाता है। करेक्ट? समझ गए? Okay, sir. एनी क्वेश्चन? आप वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारा वीडियो हमारे बिहार ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर है। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन? चलिए, ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं। Good night, sir. Thank Good you, night, sir. sir. Thank you so much for the English translation also, sir.
As per my request, you have translated also. Thank you so Okay, much, okay. sir. Thank you. We'll do. We'll Good give. night, So sir. we keep reminding us. So we'll otherwise we generally